Hello, everyone, and welcome to the eighth part of Chapter 1, Nature and Significance of Management. And till now, we have completed the five functions of management, that is, planning, organizing, directing, staffing, and controlling. So, after completing that, there is an individual topic, that is coordination, which is also important. Okay, so pay attention, and this topic can be asked for 3 marks. It is a very easy question, but for the commerce students, you should understand this. So, please pay attention. Okay. Now see coordination. First we will go with the meaning. Now let's see what is the meaning of coordination. See, to bring coordination and harmony among different functions carried out by different departments in the business. मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस में, दैट वी ऑल नो. सी इन देर आर three levels, that is top, middle and bottom level. In a middle level also there are different departments, there are various departmental heads, that is see accounts department hota hai, then finance department, HR department, and purchase department, sales department, production department. So there are various departments. तो उन सभी डिपार्टमेंट्स में कई सारे फंक्शंस होते हैं. तो उन फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन लाना, शांति से काम हो, सब अच्छे से काम कर सके, सो ये सब चीज़ें करना, दैट इज कोऑर्डिनेशन. राइट. सो कोऑर्डिनेशन कुछ ऐसी चीज़ है कि जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप, मिडिल एंड बॉटम लेवल, सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जितने भी काम होते हैं वो सब काम अच्छी तरीके से और तालमेल हो सके सभी के बीच में, सो बैलेंस रह सके सभी के बीच में, ये सब करना, दैट इज कोऑर्डिनेशन. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन. नाउ लेट्स सी इन डिटेल व्हाट इज कोऑर्डिनेशन और उसमें क्या होता है. सी कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मतलब कि जितने भी स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जो भी स्टेज है उन सभी स्टेज में coordination is required, and it is necessary from planning to controlling. Then coordination gives a sort of assurance for the accomplishment of objectives. Means अगर coordination होगा then it is guaranteed कि आपके कंपनी के जो भी objectives है वो अचीव होंगे ही होंगे. So coordination is that important कि वो एक, it is like a guarantee card of accomplishment of objective. आपकी सक्सेस का एक गारंटी कार्ड है अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो. राइट. सो इससे आपको ये हिंट मिलती है दैट इफ यू कोऑर्डिनेट विथ योर टीचर्स, देन whatever percentage or whatever result you are having the objective of, that will be guaranteed. So take care of it, and no work remains incomplete and no work is duplicated. तो अगेन ये भी बेनिफिट होगा कि कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो इनकम्प्लीट होगा, कोई भी काम डुप्लीकेट मतलब फिर से काम कर एक एक ही काम दो बार, तीन बार, पांच बार हो गया, ऐसा भी नहीं होगा. बिकॉज सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन है, सभी लोग बातचीत करेंगे तभी तो कोऑर्डिनेशन होगी, और बातचीत करेंगे तो ये तो ऑब्वियसली शेयर करेंगे कि ये काम मैंने कर दिया है, सो दैट थिंग विल नॉट बी रिपीटेड, और कोई भी काम इनकम्प्लीट भी नहीं होगा. सो दैट विल बी द बेनिफिट ऑफ कोऑर्डिनेशन. ओके. Okay, now next is characteristics of coordination. Okay, now see the first characteristics. See, characteristics में थोड़ा ध्यान देना, because after the characteristics there are importance of coordination. अगर आपको characteristics समझ में आ गए, then it will be very easy to understand the importance, क्योंकि सभी points almost repeat होंगे. So just pay attention in the characteristics. Okay, now let's see with the first characteristics. Coordination is required for all activities from planning to controlling. See, this point is again repeated. In earlier, we have seen that planning or controlling means planning to controlling सभी जगह पे coordination की जरूरत होगी. Means के management process होगा, that will be not possible without coordination. See, if we are doing planning, planning एक इंसान तो कंपनी में करेगा नहीं, there will be a directors. So सभी directors के बीच में अगर coordination होगा तभी तो अच्छे से planning हो पाएगा ना, right? So in directing also, in controlling, in each and everything, in each and every function of management, अगर coordination सभी लोगों के बीच में होगा, then and only then management process है, that will go very smoothly. So coordination is required. नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल या तो सिर्फ बॉटम लेवल या तो सिर्फ मिडिल लेवल. एट ईच एंड एवरी लेवल कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट देयर आर वेरियस डिपार्टमेंटल हेड्स, तो उन सभी हेड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है.
बॉटम लेवल में वर्कर्स है, सुपरवाइजर्स हैं, कई सारे लोग होते हैं उसमें, तो उन लोगों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलर इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द टॉप लेवल। सो कोऑर्डिनेशन जो भी लेवल है, टॉप मिडिल या बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सभी जगह पे कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब कि कोऑर्डिनेशन अच्छे से तभी हो पाएगा इफ देर इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दो लोगों के बीच में या तो दो डिपार्टमेंट्स के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, then and only then coordination होगा। see coordination is generally like you know mindset एक होना। तो mindset कब एक होता है? when we will exchange the ideas and thoughts of each other। so उसके लिए तो communication करना पड़ेगा। therefore अच्छे से अगर communication होगा तो coordination अच्छा होगा। and if the coordination is good तो सभी मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छे से होगी और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव हो पाएंगे। ओके, सो दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज, सी फोर्थ पॉइंट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो जस्ट पे अटेंशन। कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। नाउ इसमें ये बोल रहे हैं दैट कोऑर्डिनेशन पॉसिबल ही नहीं है इफ देर इज नो कोऑपरेशन। सो कोऑपरेशन इज important to get coordination possible. Now we are these two words coordination and cooperation are very near similar. So I will try to simplify कि cooperation और coordination में क्या difference है। There is a very small difference, दोनों में एक जैसा ही है that mindset मैच होने चाहिए। but थोड़ा difference ये है in cooperation, cooperation में क्या होगा that see let me try to explain it with an example। you joined a new school, तो ऑब्वियसली सभी जो बच्चे होंगे मीन्स क्लासमेट विल बी वेरी अननोन टू यू। तो उन क्लासमेट्स के बीच आप बैठते हो, देन यू विल 2-3 दिन होंगे, यू विल कम्युनिकेट, जो आजू बाजू के स्टूडेंट्स होंगे उसके साथ आप लोग कम्युनिकेट करोगे। उसमें से एक या दो स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसके साथ आपका माइंडसेट मैच हो जाएगा। अब ये जो आपने उन लोगों के साथ बातचीत की, no one forced you to talk to them, you talked with your own willingness। आपने अपनी इच्छा से ही बात की, आपको किसी ने बोला तो नहीं था कि बात करो, आप उनके साथ घुलो मिलो। so that thing was not told to anyone or told by anyone to you। तो वो जो आपने रिलेशनशिप और बॉन्डिंग डेवलप की, दैट इज कोऑपरेशन। आप दोनों का माइंडसेट मैच हुआ, दैट इज कोऑपरेशन। अब टीचर आएंगे, टीचर विल ट्राई टू टीच यू एंड वो पढ़ाएंगे। टीचर इज हैविंग द ऑप्शन कि वो आप बच्चों से ऐसे घुल मिल जाए कि आपका लेक्चर अटेंड करने में उनको मज़ा आए। तो अगर टीचर अच्छे से एक एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन लेवल मेंटेन हो और वो अच्छे से पढ़ा भी पाए, तो वो जो स्टूडेंट को सभी टीचर्स के साथ जो एक बॉन्डिंग होता है दैट इज कोऑर्डिनेशन। मतलब कि जो सुपीरियर पर्सन है वो अपने सबऑर्डिनेट से यू नो माइंडसेट मैच करवाता है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि उनका काम अच्छी तरीके से हो पाए, दैट इज कोऑर्डिनेशन। मतलब कि इफ आई विल सिंप्लीफाई विद द, और वी कैन रिलेट, इफ यू कैन रिलेट विद द कंपनी, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से अच्छे से काम करवा सके, उसके लिए जो अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन। एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो पर्सनल लेवल पे रिलेशंस होते हैं, बॉन्डिंग होते हैं, दैट इज कोऑपरेशन। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि कोऑपरेशन जो होता है वो वॉलंटरली होता है, मीन्स वो अपनी इच्छा से होता है किसी से बात करना कि नहीं करना। और कोऑर्डिनेशन जो होता है दैट इज डन लिटिल, मीन्स वो थोड़ा कंपलसरी होता है कि आपको अगर आप टॉप लेवल पे हो देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट से आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, तभी वो आपकी बात अच्छे से सुनेंगे। सो दैट इज कोऑर्डिनेशन। सो दैट इज स्मॉल बेसिक डिफरेंस। तो अगर कोऑपरेशन होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में, अगर एम्प्लॉयज़ ही अच्छे से घुल मिल गए, मीन्स अगर मैं या कोई भी फैकल्टी पढ़ाने आते हैं क्लास में और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पहले से अच्छे से घुल मिल गए होते हैं, then it will be very easy for the teacher to you know develop coordination among the students। so that will be the benefit in the company also कि एम्प्लॉयज़ अगर कोऑपरेशन में है, अलग अलग एक्टिविटीज अच्छे से पहले से ही कर रहे हैं, then to maintain coordination among that business or organization will be very easy।
सो देयरफॉर कोऑर्डिनेशन जो है वो कोऑपरेशन के बिना पॉसिबल नहीं है, राइट। फिफ्थ पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज पॉसिबल। मतलब कि जितने भी बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं वो अच्छी तरीके से पूरे के पूरे, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ वेस्टेज, उस तरीके से यूज होंगे बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। मतलब सभी एक्टिविटी में मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन तो होगा ही, इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज अ सोल ऑफ मैनेजमेंट। Now see, pay attention and you have to mark this thing. Coordination is considered as a soul of management. Now this thing can be asked for 2 or 3 marks. It can be also asked as a very short question or MCQ. In 2 or 3 marks, it can be asked in the statement form. In board exam, statements are very, board exam को statements बहुत ही favorite है, so they can ask statements. उनको अगर पेपर hard करना है और आपको सीधी तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, then they can write or they can ask with the statement form. तो वो statement इस तरीके से कुछ रखेंगे that explain the statement, coordination is considered as a soul of management. 3 marks. So you should know that what you have to write. You have to write the 6 characteristics. Okay. So as this way, the characteristics means statement can be asked. Then VSQ can be asked that who is considered as the soul of management. Then you have to write coordination. Similarly, MCQ can also be asked. So uh, take care of it. And this thing also you have to mark it that cooperation is not, sorry, coordination is not possible without cooperation. So here cooperation is the main thing. So ये आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कोऑपरेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, राइट। सो दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, अब ये सब पॉइंट्स रिपीट ही होंगे मेजोरिटीली। फर्स्ट इज मेक्स मैनेजमेंट फंक्शंस इफेक्टिव। मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो अच्छी तरीके से इफेक्टिव तरीके से हो पाएंगे। इट इज़ अ रिपीटेड पॉइंट। नेक्स्ट अगेन रिपीटेड पॉइंट, मेक्स ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज इन अ इजी मैनर। मतलब कि बिजनेस की सभी एक्टिविटीज अच्छे से और इजीली हो पाएगी। अगेन रिपीटेड पॉइंट दैट कोई भी काम ऐसा हो नहीं होगा कि इनकम्प्लीट रह गया या डुप्लीकेशन हो गया, सो देयर विल नॉट बी एनी सच काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगेन रिपीटेड पॉइंट, मेंटेन्स हार्मनी। सभी डिपार्टमेंट्स में हार्मनी मेंटेन होगी, दिस इज फ्रॉम द मीनिंग, राइट। नाउ दिस इज द ओनली डिफरेंट पॉइंट और यूनिक पॉइंट इन इम्पोर्टेंस। इट मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड टाइम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स। सी, अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या बेनिफिट होगा। सी, इफ द टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, then what will be the benefit? If teacher is saying that you have to complete this chapter in your classwork within 4 days, if there will be coordination, students will perform that activity, मतलब कि वो किसी भी तरीके से वो 4 दिन में क्लास वर्क कंप्लीट कर लेंगे। बट अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, देन व्हाट विल हैपन इज बहानेबाजी शुरू हो जाएगी। सो दैट थिंग विल हैपन इन द सेम वे इन द कंपनी ऑल्सो। there is top level who will give orders to the middle level और middle level bottom level को orders देंगे। अगर तीनों में से एक भी लेवल में जो कोऑर्डिनेशन कम होगा, then it will be very problematic। और जो ऑर्डर देने का टाइम और जितने टाइम में वो एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, there will be very big gap। और जितना गैप कंपनी में होगा उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सो देयर विल बी वेरी लॉस एंड टाइमिंग का लॉस होगा। सो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट बैलेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड, और वो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हो, वो उसका परफॉर्मेंस हो एक्टिविटी का, उसके बीच में ज़्यादा गैप ना रहे। दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज कोऑर्डिनेशन लीड्स टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि कोऑर्डिनेशन होगा तो आपके कंपनी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो अच्छी तरीके से फुलफिल हो पाएंगे। सो अगेन दिस इज द रिपीटेड पॉइंट। सो ओवर हियर इन इम्पोर्टेंस only the fifth point is unique, other all the points are repeated. That's why I was telling that if you learn the characteristics, the importance are free, and you just have to read the fifth point in this. So this was all about the coordination, and in the next video we are going to see the functional area of management, जिसमें 4 headings है: marketing management, HR management, finance and production management.
राइट। सो हम एक एक इंडिविजुअल टॉपिक्स देखेंगे। सो दैट वाज फॉर दिस पार्ट। थैंक यू।